Namaskar. We are discussing about the personal development, and in last class we have discussed about a common package of personal development training. In very brief, we have gone through the common approach of personal development that require in many profession, and particularly for teacher education and for the teachers, we can draw an outline of the personal development programs. So, what are the learning programs that require in our profession, and that can be compared to the overall approach also. So, we need the similar kind of thing that require a teacher for effective teaching, effective communication, effective interaction with the students, and even effective individual personal growth. So, for each and every teacher, it is required that they are planning for themselves to be upgraded, and they are being attentive to develop their personality. शिक्षक के साथ जितने भी जो चुनौतियां जुड़ी हैं, उन चुनौतियों का समाधान करना, उन चुनौतियों से मुकाबला करना व्यक्तित्व विकास के द्वारा संभव हो सकता है. When we are talking about the body language, yes, the confident body language is required for the teacher also. और उसके लिए लर्निंग प्रोग्राम हम डेवलप कर सकते हैं इन टीचर एजुकेशन ऑल्सो, वेयर the teachers can join the various methods to be confident. और उसके लिए वो डिफरेंट तरह के जो योगा और मेडिटेशन सेंटर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कॉलेज में भी चलते हैं, एड ऑन कोर्स कर सकते हैं, और वो ग्रुप डिस्कशन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे उनके ग्रुप के बीच में अपनी बात रखने का जो आदत बनेगा, जो हैबिट में आएगा, दिस टाइप ऑफ हैबिट फॉर्मेशन विल certainly help them to be confident during the classroom processes of teaching. Next, जो हम लोग बात करें effective communication, yes, we need that type of communication which will be helpful in effective teaching also. So we know that communication, what is communication, what are the various aspects, various dimensions of communication. And in communication, when you are saying something, the receiver should be capable to receive that and to meaningfully understand that, and on that basis the teaching and the teaching objectives will be fulfilled. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षक के साथ ये प्रभावी जो संप्रेषण की बात है वो भी जुड़ी हुई है, और अपने शब्दों के चयन में उनको उसी तरह का ध्यान रखना पड़ता है जैसे दूसरे प्रोफेशन में, दूसरे प्रबंधन के प्रोफेशन में इसकी ज़रूरत है. हम लोग यहाँ भी अपने छात्राओं के बीच में अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से जो संवाद स्थापित करते हैं, उनको वो एक तरह से स्वीकार करते हुए, एक तरह से रिसीव करते हुए, और अर्थपूर्ण तरीके से अगर वो हमारा टीचिंग या शिक्षण प्रवाह करता है, तो हम वो अचीव कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत जल्दी और अर्थपूर्ण तरीके से प्राप्त करते हैं. दूसरी बात है कि इसमें जो बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल हमारा क्लास है, उसमें कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करें. देन अगेन द ग्रुपिंग विल बी द इफेक्टिव मेथड स्ट्रेटजी इन दिस केस. when we have the Bangla students of Bengali medium, we have the Odia students, we have the tribal students in our classroom, then how can we make a platform where all can understand
and where the communication will be effective. For that, you can group the students and one student from each language who is effective and who is bilingual, at least who know Hindi or English along with his regional language, then that student will be the resource of the running of the class to make the communication effective. तो इस तरह से एक स्ट्रेटजी, एक मेथड हम अपना सकते हैं, और वो ग्रुपिंग का मेथड जो होगा, एक ग्रुप बनाकर जिसमें ऐसे स्टूडेंट जो कोऑर्डिनेशन कर सकते हो और शिक्षक के लिए वो रिसोर्स साबित हो सकते हैं, और एक शिक्षक प्रभावी ढंग से अपनी बातों को उनके माध्यम से रखते हुए और उनके कम्युनिकेशन में उनके उदाहरण, उनके एग्जाम्पल्स को साइट करते हुए एक प्रभावी शिक्षण कर सकता है और पूरा क्लास गतिमान हो सकता है, जो हमें शिक्षण में जरूरत है। तो प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए केवल इंग्लिश के कोर्स करने जरूरी नहीं है कि हम अंग्रेजी सीखते हो या बहुत अच्छी भाषा पे पकड़ हो, ऐसे तो वो जरूरी है कि वो एक प्लेटफॉर्म बने, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम जितने भी जो लोग क्लास में, जो छात्र छात्राएं क्लास में हैं, जो भी भाषा समझते हो और इस भाषा से अगर अनभिज्ञ हो, तो कैसे उनको उस स्तर पे लाया जाए जिससे हमारा एक कॉमन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हिंदी, माध्यम बन सके अपने क्लासरूम का, और हम सारे बच्चों को एक माध्यम से जोड़कर अपने शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। फिर हम लोग जब लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं तो भी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। अगर हम किसी टीचर इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल के पोस्ट पे हो, एजुकेशनल लीडरशिप के पोस्ट पे हो, तो हमारी बातें उस तरीके से कही जानी चाहिए जिससे सब लोग प्रभावी रूप से सुने और उनको समझ पाए। हम कोई भी संदेश देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पालन करें, तो इसके लिए हमें वो लीडरशिप स्किल की जरूरत पड़ती है और कम्युनिकेशन स्किल भी एक पार्ट है। इसको बढ़ाने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, इन दिस रिगार्ड दैट वी वांट द कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, वी नीड ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो। सो एक लीडर्स, एक प्रिंसिपल का ऐसा ग्रुप या उसकी प्रिंसिपल बनने से पहले वो इस तरह से अगर संवाद स्थापित करते हो, लगातार ग्रुप डिस्कशन या उस तरह के काम में लगे हुए हों, जो आपस में संवाद करते हो, इंटरेक्शन करते रहते हो, तो जाहिर है उनके संवाद शैली अच्छी हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। कम्युनिकेशन के बाद हमारा जो दूसरा आता है कि हम लोग कैसे सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर सकते हो, और समस्याओं को समझने के लिए हम लोगों के पास क्या सुविधाएं हैं। तो हमको चाहिए कि हम मॉरल स्थापित करें, वो एक तरह से जो टीम बिल्डिंग अप्रोच होता है वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगाएं, और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिसमें हम अपनी समस्याओं के साथ बहुत अच्छे से मुकाबला करते हो। और एक शिक्षक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, एक छात्र के सामने एक आदर्श बन सकता है अगर वो सारी समस्याओं के समाधान के समय मिलजुल कर या एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ने का एक आदर्श स्थापित करे और उन्हें एक तरह से प्रेरणा दे। सो अ गुड टीचर इज अ गुड मोटिवेटर, एंड इवन टीम बिल्डिंग कैपेबिलिटी शुड बी देयर इन टीचर एंड ऑल्सो इन अ लीडर। तो वो टीम बिल्डिंग का जो कोऑर्डिनेशन की बात आती है कि हम कैसे किसी समस्या को खुद ब खुद सॉल्व नहीं करते हैं, अपने छात्रों को कैसे इन्वॉल्व करते हैं। तो हम लोग किसी समस्या को देकर उसे, जैसे प्रोजेक्ट मेथड इसमें अच्छा काम कर सकता है कि हम किसी समस्या को रखते हैं, एक सिचुएशन प्रदान करते हैं और सब लोगों से उसका सलाह लेते हैं, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी वैल्यूड। तो एक स्टूडेंट को हम ध्यान देते हैं कि सबकी बात रखी जाए और सब अपने प्रोबेबल सॉल्यूशन की ओर बढ़ सके। तो सब इस तरह से मिलकर इस माध्यम को चुनते हैं और मिलकर
वो प्रयास करते हैं कि कैसे किसी समस्या से समाधान हम कर सकें। तो वो टीम स्पिरिट की भावना हम देना और सब लोगों को एक साथ एक लक्ष्य से जोड़ना, ये एक शिक्षक अगर कर दे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में वो एक साथ बहुत सारे माने पूरे क्लास को, इवन एक लीडर अगर है, एजुकेशनल लीडर प्रिंसिपल है, तो पूरे टीचिंग कम्युनिटी को एक साथ अपने इंस्टीट्यूशन के एक गोल सेटिंग बिहेवियर के साथ टीम बिल्डिंग अप्रोच की ओर ले जाता है। और ये बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है पर्सनल डेवलपमेंट का। तो ये स्ट्रेटजी होती है कि समस्याओं को अकेले हल न करके समस्याओं को साथ मिलके हल करना और एक लक्ष्य स्थापित करना, गोल की ओर धीरे धीरे बढ़ना, एक मॉरल स्थापित करना और सभी को उस तरह से बनने की प्रेरणा देना। ये सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटजी जो हैं इसी मेथड के पार्ट हो सकते हैं और वो आगे जाकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो हम लोग इस तरह से अपने पूरे ग्रुप डायनेमिक्स को एक तरह से पॉजिटिव लेके जा सकते हैं, सकारात्मक रवैया अपना सकते हैं। सकारात्मकता हर चीज़ में इसलिए आती है, इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम किस तरह से अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, ये मायने रखता है। If we have the complaining nature, then we always complain about the institution, we always complain about the principal as a teacher, and even a student can complain about his class teacher, her class teacher. But it can be the best way that you can take the positivity from your surrounding, from your teachers, and you can coordinate to resolve any conflict or any such negativity, to solve the problem and to upgrade your personality. तो आप इस तरह से एक शिक्षक के साथ वो ऐसा संवाद स्थापित करते हुए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और अगर कोई कमी है भी तो वीकनेस को दूर करने में सपोर्टिव रोल अदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप केवल नेगेटिव बातें बोलते हैं, नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। नकारात्मकता देखने से, नकारात्मकता के बारे में बोलने से आपकी पर्सनालिटी को धक्का पहुंचता है, आपके व्यक्तित्व में वो कमी आती है। एंड इफ यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, देन द पॉजिटिव एक्सटेंट, पॉजिटिव एलिमेंट्स विल बी इंक्लूडेड, इनकॉर्पोरेटेड इन योर पर्सनालिटी ऑल्सो। तो ये पर्सनालिटी का इस तरह के रूल को हम लोगों को पूरी तरह समझना पड़ेगा। इसका एक फिर है कि इन सब कार्य करने के बाद आप असेस करते हो, इवेलुएट करते हो, तो वो आगे भी हम लोगों को देखना है, आगे है उसको अलग से भी हम लोगों को देखना है, सेल्फ एनालिसिस, रिफ्लेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म। लेकिन अगर कुछ भी करते हो तो आप अगर शाम में रात में बैठ के एक बार आंख बंद करके देखें कि थ्रू आउट द डे व्हाट यू हैव डन, तो आपको वास्तव में ये पता चलेगा कि आप में क्या क्या कमियां रह गई और फिर अगले दिन आप थोड़ा सा बेहतर उसके साथ सामने आएंगे। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जो सारे टीचिंग कम्युनिटी के साथ सारे स्टूडेंट्स के लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं फॉर देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब सर्कमस्टांसेस पे भी ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, क्योंकि हम अगर जिस समय हैं उस समय पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो तरीका है वो बदल जाता है। फॉर एग्जांपल हम अगर अभी क्वारंटाइन डेज की बात करें, जब सब लोग अपने अपने घर में हैं, तब हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या तरीके होने चाहिए। एक थॉमस लिकोना है प्रोफेसर, वो साइकोलॉजी टुडे में कहते हैं कि आज के समय में आपको अगर इस तरह से भगवान ने अपने परिवार के साथ रखा है, देन हाउ कैन यू डेवलप योर पर्सनालिटी इन दीज डेज। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड discourse to discuss here, and for through that discourse also, through that psychology, understanding that psychology, you can develop your personality in these adverse conditions. He said that you should be all together in all your discussion when you are discussing about the coronavirus or even about the future and the problems that yet to come related to the economics and
other of the whole country. So, and even unemployment that may increase after this period. तो आप अगर कुछ भी डिस्कस करते हो तो उनको शेयर करिए, उनके साथ बातें करिए. इफ यू प्रे, यू शुड प्रे टुगेदर. एंड इवन पूरे फैमिली में से आप अब अपने प्रश्न करने का अंदाज बच्चों से बदल सकते हैं कि ऐसे कौन सी बातें हैं जो आपने इस दौरान सीखा है, आप क्या कर सकते हैं, आपने आज क्या सीखा जब आप घर में रहे, आपको क्या देखने को मिला, क्या नया चीज़ हम लोग कर सकते हैं अगर हमें इतना समय मिलता है. सो क्रिएटिव बनाने के लिए, उनको फिर उनके मॉरल्स को जगाने के लिए आप उनके साथ समय बिताते हुए ऐसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं जिनसे उनको सेंसिटाइज किया जा सके बेहतर से बेहतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए.